Students, today we are going to sum up our chapter The Address for 11th class. In the first video, we learned some points that Mrs. S.'s daughter, she decided to bring back her mother's belongings from Mrs. Darling's. When she went there at the first time and she passed the bell, a woman opened the door. She looked at the newcomer searchingly, but when the narrator introduced herself, the woman's face showed absolutely no sign of recognition. But after some time, the woman knew that this is the same girl whose belongings she had brought her house before the war. And the lady was not agree to meet her at that time. She said that she is not feeling convenient to meet her at that time. Then the narrator think about the mother. Then she thought about her mother, that she had given that address of Mrs. Darling years ago when Holland was war stricken, and it had been in the First World War. She remembered how she came home for a few days and she noticed that various things in the house were missing. Her mother told her about Mrs. Darling. She had never heard of her before. It was clear Mrs. Darling must have been an old acquaintance of her mother, and suddenly she started coming regularly to their house. Mrs. Darling came frequently. Every time when she visited, she took something with her. One day she took all the silverwares, then she took away the antique plates hung on the wall. Means most of the things she had taken to her house. But the narrator wanted to know if there was a written agreement that Mrs. Darling would return all these articles safely. Because the girl couldn't trust anyone so blindly, but Mrs. S replied that it was not necessary. Even Mrs. S was thankful to Mrs. Darling for what she was doing for her. All that happened years ago. But when she found that her first visit was unsuccessful, because at that time Mrs. Darling didn't show any kind of interest to meet her, then she decided to meet her at the second time. So let's see what happens when she visited Mrs. Darling's house second time. After my first visit in Waynes to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. फर्स्ट विजिट यूजलेस होने के बाद नरेटर डिसाइड करती है कि उसे सेकंड टाइम जाना चाहिए मिसेस डॉर्लिंग के घर. नाउ ए गर्ल ऑफ 15 ईयर ओपन द डोर टू मी. अब एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल दरवाज़ा खोलती है नरेटर के लिए. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम. नरेटर आल्सो आस्क्ड हर दैट वेदर हर मदर वॉज एट होम और नॉट. नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन इरेंड. इरेंड मीन्स फॉर अ वर्क, कि भी उसकी मदर एक काम के लिए बाहर गई हुई है. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, बट नरेटर एग्रीड विद दैट एंड शी टोल्ड हर दैट शी कुड वेट फॉर हर मदर. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. नरेटर सेज दैट शी फॉलोड द गर्ल व्हेन शी टुक द नरेटर इनसाइड हर हाउस. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. Narrator says that when she went inside the house, then she found something. Hanukkah means here a joyous festival of lights. यहूदियों यूज़ करते हैं उस टाइम पे, मीन्स क्रिश्चियंस यूज़ करते हैं अपने लाइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए. तो नरेटर कहती है कि मैंने वहाँ पे एक कैंडल होल्डर, एक हनुक्का वहाँ मिरर के साथ एक टंगा हुआ देखा. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक. नरेटर सेज दैट दे नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज टू हैवी टू यूज इट. दैट्स वाई दे नेवर यूज इट, बिकॉज अ सिंगल कैंडल कैन बी सफिशियंट. आपने देखा होगा एक कैंडल स्टैंड होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारी कैंडल्स हम जलाते हैं,
तो नरेटर कहती है कि एक तो ये हैवी था, दूसरा इसमें बहुत सारी कैंडल्स भी जलती थी, इसीलिए एक कैंडल एनफ रहती थी। उसकी मदर अवॉइड करती थी उस हनुक्का को यूज़ करने के लिए। बट व्हेन शी ऑब्जर्व दैट हनुक्का वाज यूजिंग एट दैट टाइम एट मिसिस डोलिंग हाउस, मिसिस डोलिंग उसको अपने घर में यूज़ कर रही है। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा कि आप नहीं बैठेंगी। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला नरेटर के लिए बैठने के लिए, सिटिंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, नरेटर ऑल्सो वेंट इनसाइड। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, नरेटर कहती मैं वहाँ पे रुकी, बिकॉज एट द टाइम आई वॉज स्केयर्ड, मीन्स समथिंग वॉज देयर बाई विच शी गोट अफ्रेड, वो डर गई, थोड़ी सहम गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, बिकॉज शी फाउंड हर सेल्फ इन द रूम विच वॉज फैमिलियर टू हर और नॉट, वो ऐसे कमरे में थी जिसे वो जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। नरेटर कहती है मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जहाँ पे नरेटर को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन्हें वो दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें नरेटर को एक अजीब से एटमॉस्फेयर में देखने को मिली। बिकॉज द यू थिंग्स विच दे वर नॉट यूजिंग एट द टाइम मिसिस डोलिंग्स वॉज यूजिंग टू सी, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और चीज़ें भी टेस्टलेस वे से अरेंज की गई थी, मीन्स बेढंगी रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और वहाँ का जो फर्नीचर था वो भी काफ़ी भद्दा था, उसमें से स्मेल आ रही थी। नरेटर कहती है कि उन्हें पता नहीं, परंतु हर चारों तरफ देखने का नरेटर बहुत मुश्किल से ही डेयर कर पा रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने नरेटर के लिए एक चेयर को ऑफर किया। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, नरेटर बैठ गई और वहाँ पर टेबल पर एक वुलन का टेबल क्लॉथ लगाया हुआ था, उसे वो नरेटर देखती है। आई रब्ड इट, नरेटर रब्ड दैट टेबल क्लॉथ, माई फिंगर्स ग्रू वॉर्म फ्रॉम रबिंग, नरेटर्स कहती है कि जब मैंने उसका रब किया तो मेरी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, नरेटर ने उस कपड़े के पैटर्न की लाइन्स को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बी रिपेयर्ड, नरेटर कहती है कि भी इसके एज पर, इसके किनारे पर कुछ बर्न मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि वो बर्न मार्क्स नरेटर ने कभी भी उसको मैंड नहीं किया था, उसको ठीक नहीं किया था। माई मदर्स विल बी बैक सून सैड द गर्ल, इन द मिड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंकिंग वॉज एट द टाइम मूविंग इन हर माइंड, तो लड़की कहती है कि मेरी मदर जल्दी पहुंच जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, लड़की ने अपनी मदर के लिए चाय भी बना दी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी चाय लेंगे? थैंक यू। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, नरेटर कहती है कि मैंने देखा जो लड़की है उसने चाय टेबल पे लगा दी। सी हैड ए ब्रॉड बैग, नरेटर कहती उसकी बैग भी ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसकी मदर की ब्रॉड बैग थी। सी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने चाय एक वाइट पॉट से डाली। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके चारों तरफ जो लिड था, मीन्स जो ढक्कन था, उसके चारों तरफ गोल्डन कलर की बाउंड्री कर रखी थी। बिकॉज समथिंग वॉज फैमिलियर टू द नरेटर। आई रिमेंबर्ड, नरेटर को वो याद आता है दैट वॉज आल्सो बिलोंग टू हर, ये भी उन्हीं के घर का है। बिकॉज सी रिकग्नाइज्ड बाय द वाइट पॉट बिकॉज देर वॉज ए गोल्डन लाइन ओवर द लिड। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, नरेटर कहती है कि भी उसने, लड़की ने कुछ एक बॉक्स को ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई वॉइस अगेन, नरेटर कहती मेरे अंदर से खुद से आवाज़ आई, कितना सुंदर ये बॉक्स लग रहा है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, नरेटर कहती ये आवाज़ काफ़ी स्ट्रेंज थी। एज द ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, नरेटर कहती कि भी ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में हर आवाज़ अलग अलग हो। ओ यू नो अबाउट दैम, नरेटर
तो वो गर्ल को लगा शायद नरेटर उनके बारे में जानती है। शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो थोड़ा सा मुड़ती है और मेरे लिए कि चाय ले आई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। मेरी मम्मी कहती है बहुत ज़्यादा एंटीक है। वी हैव गोट लोट्स मोर, ऐसी हमारे पास बहुत सारी ढेरे चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो उस रूम में चारों तरफ पॉइंट आउट करती हैं। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख सकते हो दैट देर आर लोट्स ऑफ एंटीक थिंग्स इन आवर हाउस। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। नरेटर कहती है मुझे उसका हैंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मेंट, बिकॉज नरेटर ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि भाई देर वर मैनी थिंग्स विच वर बिलोंग टू हर एंड दे ऑल दीज थिंग्स वर एंटीक। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अभी भी नरेटर की नज़र उसी टेबल क्लॉथ पर लगी हुई थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइड द एप्पल ऑन द प्लेटर प्लेट। नरेटर कहती है कि भी मैंने हमेशा से ही यही मतलब इमेजिन किया था कि भी मैं उन्हीं प्लेटर प्लेट्स के अंदर सेब रखूं और उनको मैं टेस्ट करूं। वी यूज़ फॉर एवरीथिंग सी सेड, बट वो गर्ल कहती है कि भी हम इन्हें हर चीज़ का यूज़ करने के लिए इन प्लेटर प्लेट्स को यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। नरेटर को याद आता है कि भी हमने एक बार में ही उन प्लेटर प्लेट्स में खाना खाया था। विच वर हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो दीवार के ऊपर टंगी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे उनमें प्लेटर प्लेट्स को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता था। बट इट वॉज़ नॉट एनी थिंग स्पेशल, बट कोई चीज़ वहाँ पे विशेष नहीं थी खाने के लिए। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। नरेटर कहती है कि भी जब वो उसको ऑब्जर्व करती देयर समथिंग बर्निंग मार्क विच द नरेटर नेवर रिपेयर्ड, तो उसे वो बर्न मार्क मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। गर्ल भी थोड़ा क्वेश्चनिंगली तरीके से उसको देखती कि भी हाउ सी गोट दैट बर्न मार्क। येस आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। नरेटर को जब वो सारी चीज़ें उनके घर में ऑब्ज़र्व कर रही थी तो मैंने कहा कि भी घर के अंदर ये सभी जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनको छूने के आप इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हो कि जब आप उनकी तरफ और अधिक ध्यान नहीं देते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तब आप केवल उन चीज़ों को तभी अपने घर में नोटिस करते हो जब कुछ आपको लगे मिसिंग है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि आपको या तो उनकी चीज़ों को रिपेयरमेंट करवाने की ज़रूरत होती है। बिकॉज यू हैव लेंट इट, या आपने कभी उसको उधार दे दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं पहले हम उन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, बट जब वो आपके घर में नहीं होती है तभी आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। तब नरेटर कहती है दोबारा से मेरे अंदर से वही अजीब आवाज़ आती है। आई वेंट ऑन, बट नरेटर कहती है मैंने अपनी सभी चीज़ों को आगे बढ़ती हुई याद रखा। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। नरेटर को याद आता है कि भाई एक बार उसकी मदर ने उसे कहा था अपनी हेल्प करने के लिए टू पॉलिश द सिल्वर, कुछ सिल्वर थिंग्स थी उनको पॉलिश करने के लिए। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये काफ़ी लंबा टाइम पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम। शायद या तो उस टाइम पर नरेटर बोर हो रही थी, सी वॉज सिटिंग आइडली, एंड अदरवाइज इट कुड बी हैपन दैट सी वॉज देयर एट द हाउस एट द टाइम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि ऐसा हो सकता है नरेटर बीमार थे और वो अपने घर पर रुकी हो। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उसकी मदर ने कभी भी उन सिल्वर थिंग्स को पॉलिश करने के लिए नहीं कहा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मेंट। नरेटर कहती मैंने अपनी मदर से पूछा कौन सी सिल्वर थिंग्स की बात कर रही हैं। सी रिप्लाइड सरप्राइजिंगली, बट माई मदर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई आस्क्ड हर दैट विच थिंग्स शी वॉज आस्किंग दैट इट वॉज द स्पून्स। नरेटर कहती है ये स्पून्स की वो बात कर रही है, फोक्स की बात कर रही है, नाइव्स ऑफकोर्स, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर। और नरेटर कहती है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था
जिन चीज़ों में हम अपना खाना खाते हैं वो सभी सिल्वर की बनी हुई हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वो लड़की कहती है कि मैं आपसे बेट लगाती हूँ, आपको ये भी मालूम नहीं होगा। What we eat with, she asked. Well, do you know? She agitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It is in here. नरेटर वो थोड़ा सा लड़की वैसे तो हेजिटेट करती है, बट सी वॉक टू द साइड बोर्ड, लेकिन जो साइड बोर्ड में एक ड्रॉर था वो वहाँ पे गई। उसने ड्रॉर ओपन किया और कहती मैं देख लेती हूँ वो चीज़ें जो जिन सिल्वर थिंग्स की वो बात कर रही हैं वो यहाँ पे अंदर हैं। Means the narrator says that on her second visit, the narrator found all her mother belongings in Mrs. Dorling house. Now Mrs. Dorling owned and used them. The silver cutleries was used for daily use. They did not even spare the antique plates. They were hanging on the wall. The tablecloth with the burn mark was on the table. And many things. The narrator was observing that Mrs. Dorling was using all such things which the narrator never used at their house. And it was also surprising for her when the 15-year-old daughter of Mrs. Dorling knew nothing about the nice things, because in the former type all these things belonged to the narrator's mother. Now she was showing the teapot with the golden border, antique plates, most of the things with pride. But she knew nothing about Mrs. S or how her mother acquired those nice things. It means she was also totally ignorant about her, because now they were using at their house, and it could be happen that her mother didn't tell her anything before that. I jumped up. I was forgetting the time. Narrator कहती है कि while she was opening the door and wanted to see the narrator other things, suddenly the narrator got up because now it was train time. I must catch my train. अभी मुझे जाना होगा because मुझे अपनी ट्रेन को पकड़ना है. She had her hand on the door. अभी उसने अपने डोर को पकड़ा हुआ था. Don't you want to wait for my mother? But the girl said that the narrator didn't want to wait for her mother. No, I must go. I walked to the door. Narrator door की तरफ गई. The girl put the door open and I can find my own way. लड़की दरवाज़ा खोलती है, बट नरेटर कहती है कि भी now she can go. अब वो जा सकती है खुद ही. I can find my way. मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूँगी. As I walked down the passage, जैसे ही मैं उस रास्ते से गई, I looked up at the name plate. दोबारा फिर नरेटर नेम प्लेट की तरफ देखती है. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. मार्कोनी स्ट्रीट उस पर लिखा हुआ था. And before that the narrator also heard the jingling of spoons and forks. But when she reached at the corner, she found that there was a name plate again. Marconi Street, there was written. I had been at number 646. नरेटर कहती है मैं तो उसी नंबर 46 थी. द एड्रेस वॉज करेक्ट. एड्रेस करेक्ट था, बिकॉज शी रिमेंबर दैट ओनली वंस टाइम हर मदर asked her to remember that thing, that all these things were at the address number 46 Mrs. Dorling in Marconi Street. When the lady, means Mrs. Dorling, visited their house once. Now I do not want to remember it anymore. But narrator कहती है कि address was absolutely right, but now she did not want to remember further. I won't go back there because the objects that are linked in your memory, क्योंकि जो objects जो आपकी memories से जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी पुरानी यादों को वापस ले आते हैं, with the familiar life of former time, instantly lost their value when served from them. You see them again in strange atmosphere. क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी पुराने टाइम की पुरानी यादों से जुड़ी हुई होती हैं,
वो अचानक से आपका उनसे रिलेशन टूट जाता है, वो अपनी वैल्यू खो देती हैं जब आप उन्हें किसी दोबारा से किसी स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में उन चीज़ों को देखती हो। बिकॉज all these things the girl and the mother was using at their house, all the cutlery, all the knives, forks, spoons, that were made of silver, now the were using these things. Means now she was also pained to note that they were arranged tastelessly. Everything was very in a strange manner. So the narrating think that now these things in reality that belong to the narrator, but now she couldn't do anything. अब वो कुछ नहीं कर सकती थी because all these things related to her mother and the mother also didn't exist, और अब उसके मदर उसके साथ भी नहीं है। इसलिए नैरेटर कहती है कि भी अब उन्हें उन चीज़ों के बारे में, उन फॉर्मर थिंग्स के बारे में दोबारा से याद करने की, उनको देखने की हिम्मत उसमें नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस। और अब नैरेटर को क्या करना है, क्योंकि अब वो वॉर के बाद अब एक छोटे से रेंटेड रूम में रह रही है, वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, because now she is living in a small rented room. अब वो एक small rented room में रह रही है। and in the former time when she was at her real house, there were all the things which were hung over the wall. Hanukkah was there, platter plates were there, so many decorative things. But now she did not live in her house. Her mother didn't live with her. She has passed away. Now she just not wanted to have any kind of relation with these girls things which she found at the strange atmosphere. Now she was in such room where only the blackout paper was pasted on the windows and all the walls, and there was not so much space to be kept all these things to in a small rented room, because there was a drawer and the drawer was too short to carry all these things, और वो ड्रोर बहुत छोटी थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो नहीं रख सकती थी, तो उनका कोई फ़ायदा भी नहीं था उन चीज़ों को दोबारा याद करने का, दोबारा देखने का, या मिसी डॉर्लिंग से वापस लेने का। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट दैट डस। अब नैरेटर डिटरमिन करते लेती है कि भी अब उन चीज़ों को उसे भूल जाना चाहिए। ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी डाइजेस्ट। अगर वो उन सभी चीज़ों को भूल जाएगी, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें उन्हें भूलनी थी, और उनमें से वही सबसे ज़्यादा आसान होगा अपनी लाइफ को आगे स्मूथली ले जाने का। बिकॉज वे ऑल दोज नाइस थिंग्स विच वर वंस द बिलोंगिंग ऑफ हर मदर, नाउ दे वर ओनली मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर टाइम्स, बट नाउ all these things had lost their values because their true owner was no longer existed. They were in the strange surroundings. That's why she had to forget them and the address where they were still lying. This is the chapter, the address. I hope you will have understood all the chapter. Thank you.